Okay, so hello everyone, welcome to my channel. It's been a week since I came up with a video, more than a week. Actually, last weekend I was out on a holiday, on a vacation, and it was a long weekend as well. Markets were closed, so I took a break from Wednesday, and then I came back on Sunday. So that is the reason I couldn't make videos. And since I'm back, I have not been doing well. I'm sick, and even today I'm not that well. But I thought of coming up with a video because many things and logics have been accumulated in the recent while. So I'll be covering it. Please don't mind if my voice doesn't sound good right now. I'll try to explain things in the best way possible. This video won't be that short. I'll make it properly. So let's start with it. I think we should start with first. We should start with Dow Jones. I think my screen is visible. Yeah, it is visible. So I'll be covering all the aspects, the trades I had taken, the trades I had discussed on group. So firstly, let's look at the daily chart of Dow Jones, what Dow Jones has been doing. So, yeah, just a minute. Yeah, firstly, I'll talk about the wrong trade I took, the wrong trade. On this day, I took a long in the market, somewhere around here. This is 31st March. No, sorry, not this one. Let me open the 15-minute chart. I took a hit this day. I very well remember that. Yeah, somewhere around here. Yeah, somewhere around here. I took a short on 14th of I took a long on 14th of April on this fake out. I saw this profit and so exited somewhere around here. I clearly said that the markets are getting sideways, so I won't like to participate. Because क्या होता है ना, डाउ के कुछ कैंडल्स हैं, वो जब भी बनते हैं ना, मार्केट पहले कंसोलिडेट करना चालू कर देता है और मैं एग्जिट कर देता हूँ. उसका रीजन क्या है, आप ये देखो. मेरे लॉन्ग करने का रीजन बताता हूँ मैं पहले. ठीक है, लॉन्ग करने का रीजन ये था कि यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस था, नो डाउट. बट मुझे ये एक बहुत क्लीन, देखो डाउ जोन्स में डेटा तो होता नहीं है, आपको प्राइस एक्शन ही ट्रेड करना है, और प्राइस एक्शन बेयरली हम गलत होता है. एंड ऑनेस्टली इस दिन मेरा लॉस नहीं हुआ था, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला था. आई थिंक $50 का लॉस था, बहुत माइनर लॉस था. दैट इज अराउंड लाइक हाउ मेनी पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स. मेरे पास 0.01 लॉट्स, 50 पॉइंट्स इन डाउ जोन्स इज नथिंग. सो somewhere around here I took a long, then markets went up, they consolidated. When this thing failed, इसके बाद इसको ऊपर निकल जाना चाहिए था as per my setup, but it was forming sort of descending triangle, so I got scared and I exited my position somewhere around here. And then we got a good fall. Then again ये rise मैंने long नहीं किया, मैं अपना डे क्लोज कर देता हूँ यूजुअली ऐसे सिचुएशन में. ठीक है, तो डाउ की पहली ट्रेड तो ये थी. ठीक है, और इसके अलावा हमने और क्या ट्रेड किया है मैं वो भी बता देता हूँ. डाओ को मैंने एक मैसेज डाला था कि डाओ फियर्सली ब्रेक डाउन देगा. मैं ना अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा बता देता हूँ. हम लोग यहीं से स्क्रॉल करना चालू करते हैं कि क्या क्या ट्रेड्स किए. ठीक है, या दिस इज द डे, दिस इज द डे वी मेड अ लॉस. This is 14th April. Yeah, I took a $58 loss this day. Now coming, I gave a message on 18th of April that this is a good rise to short. 18th ऑफ अप्रैल को हुआ क्या है अब समझते हैं हम लोग. ठीक है, 18th ऑफ अप्रैल को मार्केट ने यहाँ पे, अगेन मैं अपनी गलतियों से सीखा. मैंने क्या किया, मुझे वापस डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा था. यहाँ पे एक राइज, यहाँ पे एक राइज, लोज तुम्हारे हायर होते जा रहे थे. और ये पॉइंट जो था ना, देखो मैं एक चीज बताता हूँ. मार्केट कभी भी अगर सेकेंडरी ट्रेंड बेरिश चालू कर रहा है तो ऐसे रिवर्स नहीं करेगा. एक दिन ब्रेकडाउन दे दिया, दूसरे दिन ब्रेकआउट. उसका तो कंसोलिडेशन चाहिए, उसको या तो एक फॉल चाहिए डिस्काउंट एरिया में आने के लिए, अगर उसको ऊपर जाना है तो. सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस वाज अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड एरिया. So I was expecting markets honestly to come to this point, at least 34,398. एंड डेटा इस दिन का बेरिश था. इस दिन का जो इंडियन मार्केट्स का डेटा था, कॉल राइटिंग थी 2 लाख. तो सिंपल है, डाउ को रेड बैंड करना था. प्राइस एक्शन ने कंफर्मेशन दिया, मैंने यहीं पे शॉर्ट कर दिया था मार्केट को. ठीक है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ऐसे ही खोल के रखा है. 1 मिनट पे करता हूँ मैं ट्रेड और 15 मिनट्स पे. एक्चुअली मेरा कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है, मैं हर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, 5 मिनट्स के अलावा 5 मिनट्स नहीं देखता मैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ कहीं पे क्वांटिटीज ऐड करी थी. देन वी गॉट अ ब्रेक डाउन. आई बुक्ड माई पोजिशन समवेयर अराउंड हियर. बुक करने का रीजन क्या था, बुक करने का ऑनेस्टली कोई रीजन नहीं था. मेरी क्वांटिटीज ओवरलोडेड थी, इसलिए मैंने बुक कर लिया था. देखो मैं हमेशा एग्जिट के रीजंस नहीं ढूंढता हूँ, मैं एग्जिट अपने मनी के अकॉर्डिंग करता हूँ. मैंने कितने की पोजीशन बनाई है,
because in the end stock market में knowledge and money are the only two things which matter. So यहाँ पे I was overloaded with position and somewhere around this point I exited the remaining quantities. I booked 50% somewhere around here and बचा हुआ quantity मैंने यहाँ book कर लिया. Then this was a big pullback. Again I didn't get bullish कि ये fake out है. ऐसे नहीं आते हैं fake outs. Fake outs दिखने में अलग होता है. ठीक है, डाउ की ये एक ट्रेड थी. उसके बाद थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बेयर करना. ठीक है. उसके बाद डाउ का ये वाला ट्रेड, कल वाला ट्रेड आई थिंक, हाँ कल वाला ट्रेड था. आई वाज नॉट डूइंग वेल सो आई स्लेप्ट समवेयर अराउंड 5:30 एंड आई वोक अप अराउंड 7:30. सो ऐसा हो गया कि मैंने लॉन्ग करने का सोचा था डाउ को खुलते ही, बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि आई वाज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम. सो व्हाट आई डिड वाज कि सी दिस इज अ, ये होता है फेक आउट डाउन साइड का जिसको हम लोग कहते हैं ना, मैं बताता हूँ. दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली अ फेक आउट. ये होता है, मतलब इतना डीप नहीं होता है फेक आउट. यहाँ तक जा रहे हैं फिर रेंज के अंदर आ रहे हैं, नहीं. आप ये लेवल तोड़ रहे हो, आप रेंज के अंदर आ रहे हो, प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है, आप एक बहुत सारे रेजिस्टेंस के ऊपर हो. ठीक है, आपने इसको ब्रेक किया, आप सस्टेन कर रहे हो लेवल्स पे. सो दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट वेयर आई टुक अ लॉन्ग. अगेन आई विल टेल यू, आई टुक अ लॉन्ग एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड आई एग्जिटेड एग्जैक्टली एट द टॉप. नाउ अगेन द रीजन फॉर एग्जिट मैं बता देता हूँ. कुछ कैंडल्स है वो नहीं बननी चाहिए रेजिस्टेंस के पास. ये कैंडल देख के मेरा मूड ऑफ हो गया था और मैंने डिसाइड किया था कि मैं होल्ड नहीं करूंगा. क्योंकि कभी भी अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है, आप देखना ये वाला जो पुश होता है ना, ये बहुत जोर का होता है. मतलब यहाँ ये इस कैंडल में निकल जाना चाहिए था. आप ये समझो इससे इतना बिल्डअप दिया है इधर, तो ये यहाँ पे पॉज क्यों कर रहा है. ये कैंडल के बाद इसके बाद शूट करने की अपॉर्चुनिटी थी, इसको पॉज नहीं करना था. हमें कंसोलिडेशन मिला है समवेयर अराउंड 60 मिनट्स का, और ये डिप दे के ऊपर जा रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेरिश हो जाएगा. बेरिश नहीं हुआ, मार्केट गिरा नहीं उसके बाद, आप देख लो. उसका रीजन ही ये था क्योंकि आपने यहाँ पे बिल्डअप दिया है, तो यहाँ पे सारे बायर्स एक्टिव है. इट्स जस्ट अ थिंग दैट वी नीड मोर बायर्स टू टेक द मार्केट्स अप, सो इट विल गेट साइडवेज. सो आई क्लियरली गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट यहाँ से साइडवेज होने वाली है. सो आई टुक अ लॉन्ग अगेन समवेयर अराउंड हियर एंड हियर एंड आई बुक माई पोजिशन. ऑनेस्टली अगर जगह होता मैं यहाँ लॉन्ग कर देता मार्केट को. आप जानते हो मेरा सेटअप ये वाला. ठीक है, तो ये हुआ. अभी जैसे करेंटली देख लेते हैं मार्केट क्या कर रहा है. अगेन अगर आप देखने जाओगे, हम एक अपसाइड देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, बट अगेन आप देखो यार यहाँ पे ना अच्छा रेजिस्टेंस है. मैं यूजुअली मार्केट्स इतने हाईस पे होते हैं तो ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ. मतलब मैं ट्रेड ही नहीं करता, और स्पेसिफिकली डाउ जोन्स तो कभी नहीं करता. अभी देखो डाउ जोन्स ऐसा है ना, इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था कल, ये वाला. ये मेरा फेवरेट सेटअप है. तो इसका ब्रेकआउट आया, अब एक पुल बैक आएगा तो मैं यहाँ कहीं लॉन्ग करने का सोचूंगा, बट मैं यहाँ लॉन्ग नहीं करूंगा भले ही ऐसे ऊपर चला जाए. आई विल लीव द ट्रेड. यार अपॉर्चुनिटीज रोज मिलती है, आज यहाँ नहीं मिलेगी कल इंडियन मार्केट्स में मिल जाएगी, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है. ठीक है, अब डाउ को हम लोग डेली पे एनालाइज कर लेते हैं एक बार. डाउ क्या करना चाह रहा है. हमने यहाँ पे इसका बॉटम पकड़ा था यार डाउ पे, अगर आपको याद हो यहाँ पे मैंने कह दिया था कि डाउ का बॉटम बन चुका है. ठीक है, अब ये समझना यहाँ से हम कितने पॉइंट्स ऊपर आए हैं. 3,100 पॉइंट्स. नो डाउट आप ट्रेड नहीं कर पाओगे इसको. मैंने सोचा था एकदम छोटे से लॉट्स लेके करता हूँ, बट दैट इज वेस्ट ऑफ मनी. कुछ अर्निंग होगी नहीं एंड बैठना पड़ेगा विदाउट एनी रीजन. सो आई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स रादर देन द इंडेक्स. आई बिलीव स्टॉक्स ज्यादा रिटर्न देते हैं. सो ये हमने ये मूव पकड़ा था, ये मूव पकड़ा था. यहाँ पे हमने कहीं शॉर्ट किया था, यहाँ पे हमने बाई किया था. अभी हम लॉन्ग है, हमारा व्यू लॉन्ग है. मैं ये नहीं कह रहा हम लॉन्ग है, हमारा व्यू अभी भी ऊपर है. अगला जो सेल ऑफ पॉइंट है मेरे ख्याल से ये है. तो मेरे ख्याल से 35 635 तक इसके पास कोई हॉल्ट नहीं है बीच रुकने के लिए. इसका मतलब ये नहीं है हम यहाँ लॉन्ग करेंगे. प्लीज आप ये चीज समझो यार कि मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है, जिस भी पेस से जा रहा है, आपको मार्केट को सही जगह पे ही लॉन्ग करना है. आप यहाँ लॉन्ग नहीं कर सकते हो मार्केट को. दिस इज नॉट द स्पॉट वेयर, बिकॉज योर स्टॉप लॉस इज दिस. यार ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आई विल बी बुलिश अंटिल दिस पॉइंट. इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई रखता है. इंट्राडे में मार लो स्कैल्प, कोई दिक्कत नहीं है, मार लो. लेकिन एक करेक्शन के बाद कितना मजा आएगा ये सोचो ना. यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन होगा, फिर मार्केट शूट करेगा, तो हम उसका वेट करते हैं. ठीक है, तो आई थिंक डाउ के बारे में व्यू क्लियर है. डाउ के रीजंस ये थे हमारे ट्रेड्स के. डिसेंडिंग ट्रायंगल याद रखो यार. एक ये सेटअप है मेरा. देखो क्या होता है, अगर मार्केट ऐसे ग्रीन कैंडल के साथ खुलती है, ठीक है, ऊपर एक फेक आउट देती है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, भले ही वो नीचे फेक आउट दे दे, बट इफ इट फेल्स टू टेक आउट दिस हाई एंड यू गेट अ लोअर हाई, you will value this more than the fake out on the downside. Always remember this. Then it comes down, then it gives you a lower high. इसको क्या बोलते हैं, descending triangle बोलते हैं.
इसके बाद मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है ना, इसको एक फेक आउट देना पड़ता है, फिर ऊपर जाना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट भी बैठे हो, मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा आज बैंक निफ्टी में आपको। अगर आप शॉर्ट भी बैठे हो, आप ये मूव कैप्चर कर सकते हो और यहाँ निकल सकते हो। अगर आपको बहुत बुलिशनेस आ रही है अंदर से, ये मूव तो पकड़ लेना। आज मैंने ये मूव, भावेश को मैंने बोला था कि ऐसा होगा और वो हुआ, और मैंने भी बोला था मैं एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में। अब ये देखो डिप क्यों आई। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है मेरा जिस पर मैं ट्रेड करता हूँ। ये देखो मार्केट ऐसे ऊपर जा ही नहीं सकता यार, समझो इस चीज को। ये एक पैटर्न है, अगर ये बन रहा है ना, ये वाला पैटर्न, ये मेरी ऑब्जर्वेशन से आया है ऑनेस्टली। अगर इसको ऊपर जाना है, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, कभी नहीं हुआ है आज तक हिस्ट्री में, मैंने ऐसा नहीं देखा होते हुए कि ऊपर जाएगा। तो ये तो समझ आ गया था कि शॉर्ट जाएंगे जाएंगे, तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ एक्सपायरी पे, ये कैंडल्स ऐसी ऐसी बनती है इसलिए। ठीक है, बट ये नहीं पता था तुरंत ऊपर जा रहे हैं। अब मैंने एक्सपेक्ट किया था ये गैप फिल होगा, उसके बाद में भी बाइंग आ जाए। और अगर ये गैप फिल नहीं होता है तो ऑनेस्टली मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया था मार्केट से एक बार यहाँ तक आ जाए, कंसोलिडेशन दे और कल ब्रेकआउट दे दे। पर ठीक है, मार्केट हमें हमेशा सही प्रूव नहीं करता है, लेकिन हमें हमेशा सही होने की जरूरत भी नहीं है मार्केट में। हमें बस अर्न करने की जरूरत है। मैंने यहाँ कहीं पे कहा था आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लो, यही कहा था मैंने एग्जैक्टली लो पे। अब उसका रीजन क्या है, मैं कभी भी क्या करता हूँ, मैंने अगर पूरी क्वांटिटी बाई करी है ना, मैं ब्रेकडाउन पे थोड़ी क्वांटिटी निकालता ही हूँ क्योंकि अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। फिर उस प्रॉफिट को रिस्क करके मैं आगे का मूव पकड़ता हूँ हमेशा। दिस इज माई रूल, दिस इज माई गोल्डन रूल। ओके, नाउ कमिंग टू द अपसाइड। अपसाइड में क्या हुआ है समझना, एक्सपायरी है, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब ये क्लियरली ना बुलिश साइन होता है। अगर मार्केट को निकलना था नीचे, निकल सकता था। डेटा बुलिश था निफ्टी का, बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था, और बैंक निफ्टी ने इनफैक्ट सपोर्ट नहीं किया है। 130 तक बैंक निफ्टी साइडवेज ही था, जो हमारा व्यू था। बट ये पॉइंट पे मैंने अपना व्यू कह दिया था, साइडवेज होगा फिर बुलिश होगा। या आप टेलीग्राम पे मैसेजेस देख लो यार, मैंने टाइमिंग भी आई थिंक डाली है, सब टाइमिंग होगा ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये मेरा फेक आउट का सुपर सेटअप है। ट्रेल एंड बुक अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। 10:34 now I'm expecting a sideways market, sideways and then an upside possibility opens up। upside में कम tomorrow और on Monday। ठीक है, BNF स्टिल साइडवेज 11 बजे बोला, 1:30 बजे तक मार्केट वहीं पे था, कहीं नहीं गया है। फिर मैंने बिल्डअप होते हुए जब देखा, मैंने बोला एक बिल्डअप हो रहा है, आप इसको बाय कर सकते हो अपने हिसाब से। आई कांट बी गिविंग यू कॉल्स, ओके, आई एम नॉट द पर्सन, आई एम द पर्सन हु कैन टीच यू, एंड आई एम हियर ओनली फॉर दैट। एंड आप उससे सीख के अपनी एनालिसिस से बहुत अच्छा कर सकते हो। अभी तक जब से चैनल हमने स्टार्ट किया, मेरी बस एक एनालिसिस गलत प्रूव हुई है, उसमें भी मैं बहुत माइनर लॉस में निकला हूँ। डाउ में 50 पॉइंट्स का लॉस है, और प्रॉफिट्स मुझे शो बताने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो सारे मैसेजेस क्या होता है और कब होता है। ठीक है, अब ये क्लियरली बिल्डअप का साइन था। मार्केट ने कंसोलिडेट किया फिर अपसाइड दिया। अब हमने क्या किया, मैंने आपको यहाँ पे एक बार बुक करने कह दिया था प्रॉफिट। क्यों कहा था, एक्सपायरी है यार, एक्सपायरी पे ना कोई ठिकाना नहीं होता है। मार्केट को ऊपर भी जाना है ना, ऐसा डिप देख जाएगा। और ये मार्केट ऑप्शन बायर्स की है ही नहीं, ये मार्केट पुट राइटर्स की है। मैंने क्लियरली सुबह भी कहा था ऑप्शन बायर्स दूर रहो, गिरना भी था, देखो कैसे गिरा है। अब इसमें आप डीके दे रहे हो यार एक्सपायरी के अंदर, अब 5% तो डीके दे ही रहे हो। और अगर वर्स्ट केस में मूव इसकी जगह अगर ये आ जाता, आपका अकाउंट 30% 20% गायब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ मूव आ रहा है बुक करो, उसके बाद फिर री एंटर कर जाओ भले। री एंटर करने में क्या होता है, बस ब्रोकरेज जनरेट होती है। ब्रोकरेज आपके प्रॉफिट्स के कंपैरिजन में क्या है, समझना है इस चीज को। क्योंकि एक दिन तो करना है ना, 50 100 लॉट 200 लॉट कभी तो करोगे अपनी लाइफ में, अगर अच्छा सीख रहे हो कर रहे हो तो जब तुम ब्रोकरेज 20 रुपए दे रहे हो, मैं जीरोधा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर दिन की 6,000 भी ब्रोकरेज आ जाए, वर्स्ट केस कह रहा हूँ मैं, ठीक है, तुमने बहुत ज्यादा ट्रेड्स कर लिया। इस ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, लॉजिकली होनी चाहिए ट्रेड्स। अब मैं जाता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम में 30 और 50 सेकंड्स भी 15 सेकंड्स भी देखता हूँ, तो मुझे और ज्यादा ट्रेड मिलती है। उसकी एक्यूरेसी अनबीटेबल है। मुझे बस मेरा सेटअप चाहिए, वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। ठीक है, सो अब समझना, इफ यू आर गिविंग अ 6,000 ब्रोकरेज एंड यू आर मेकिंग 1 लाख रुपीज, समझो ना, आगे लॉन्ग रन के लिए सोचो आप लोग। ये मत सोचा करो कि मैं ट्रेड्स कम करूंगा कि ब्रोकरेज ज्यादा जनरेट होती है। ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकर ले लो अगर ऐसा है तो। देन यहाँ पे हमने बिल्डअप देखा क्लियरली, डेटा वाज बुलिश द एंटायर टाइम, साइडवेज तो धीरे धीरे बुलिश टर्न हो रहा था। देन वी गॉट अ ब्रेकआउट, हम हायर लोज बनाते बनाते ऊपर गए। ऑनेस्टली ये नॉर्मल दिन अगर होता, ये मूव ऐसे आता ही नहीं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। मूव पता है कैसे आता, मूव आता है ऐसे, मूव सिंगल शॉट आता, जैसे गिरा है वैसे ही ऊपर जाता, ऐसा कुछ आता। इतना टाइम नहीं लगता है मार्केट को ऊपर जाने में नॉर्मल दिनों में, एक्सपायरी थी इसलिए इतना टाइम लगा है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है पर्सनली। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी। अभी हम लोग ने सारी चीजें डिस्कस कर ली।
बैंक निफ्टी में मैं और भी बता देता हूँ। मैंने आई थिंक गैप डाउन के बाद से देखते हैं हम लोग, ठीक है, गैप डाउन के बाद से मैंने क्या क्या ट्रेड्स आपको बताई हैं और खुद भी की है। जस्ट मिनट। या ओके, सो वी हैड अ डबल टॉप, ये मैंने थोड़े दिन पहले अपने वीडियो में बताया था। यहाँ पे आई आस्क्ड यू टू गो शॉर्ट, इसके एक दिन पहले मैंने वॉइस नोट डाला था। आई आस्क्ड यू टू गो शॉर्ट इन द मॉर्निंग, यहाँ पे कहीं पे, इफ यू गेट अ राइज, बिकॉज डेटा में अगेन हम लोग के पास अच्छा, मतलब बहुत अच्छा डेटा नहीं था। तो यहाँ कहीं पे शॉर्ट की बात हुई थी हमारी, डे हाई के आसपास रिस्क मैनेज करके। अब इसको फेक आउट मत बोलना प्लीज, ये फेक आउट नहीं है, ठीक है। फेक आउट का मतलब क्या है, पहली कैंडल का लो टूट रहा है और अगली कैंडल पावरफुल कैंडल होनी चाहिए, ऐसे 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 करके अंदर जा रहा है, वो नहीं चाहिए हम लोग को, हम लोग को एक पावरफुल कैंडल चाहिए। तो ये एक पुल बैक था, उसके बाद मार्केट गिरता चला गया, ठीक है। ये मैं आपको पॉसिबल ट्रेड्स बता रहा हूँ, इनफैक्ट जो मैंने ट्रेड किया है वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये मूव हो गया, मैंने बहुत कम क्वांटिटीज पे किया था अगेन, बिकॉज आई वाज वेरी टायर्ड दिस डे। सो मैंने इस वीक एग्रेसिवली बस ट्यूसडे को ट्रेड किया है और किसी दिन नहीं किया। मंडे, Wednesday and Thursday, I've been managing my clients. I was looking after that. So I was not trading much. In fact, today as well, I was seeing कि क्या चल रहा है. And instead of buying options, I preferred selling options. I was asking Bhavesh to sell options instead. Okay. So ये हो गया। फिर उसके बाद again here we got a gap up. यहाँ पे डेटा अगेन बेरिश था, ठीक है। और यहाँ कहीं पे मैंने आपको इसके एक दिन पहले वॉइस नोट भेजा था कि 2 लाख कॉल शॉट से मॉर्निंग में डिप मिल सकती है आपको। और हमारी एनालिसिस क्या थी, 17,000 आ जाएगा निफ्टी, निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी को शॉर्ट करने की बात हुई थी हमारी, क्योंकि ठीक है। जस्ट मिनट। हाँ। यार दिस वाज अ रियली फनी सीन ऑनेस्टली, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार ये होगा। आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड बिकॉज दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माय ट्रेडिंग करियर इफ थिंग्स वेंट करेक्टली। बट ठीक है, मार्केट कल फिर चांस देगा, ठीक है। अब इधर मैंने शॉर्ट किया था मार्केट टॉप पे, ठीक है। मार्केट गिरता गया गिरता गया गिरता गया, यहाँ पे मुझे समझ आ गया था कि मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मैंने रिलायंस का चार्ट देखना चालू कर दिया, रिलायंस रुक ही नहीं रहा था, मतलब सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, बस रिलायंस होल्ड कर रहा है मार्केट को। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ये मूव मुझे पता था आएगा। ऑनेस्टली आप मेरे से अगर पूछोगे, शॉर्ट कवरिंग आनी होती है ना अगर, तो नीचे हमेशा आपको एक्यूमुलेशन चाहिए, मतलब नीचे एक्यूमुलेशन एज इन नीचे के लेवल्स पे बायर्स चाहिए, इन लेवल्स पे कभी बाइंग नहीं आती है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग इस लेवल से ट्रिगर ही नहीं हो सकती, शॉर्ट कवरिंग हमेशा यहाँ कहीं से ट्रिगर होती है, ठीक है। तो आप समझना, ये डिप, ये राइज, ये और ये, अब जब ये फेक आउट आ गया ना नीचे, मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी। मैंने इतना होल्ड किया था ऑनेस्टली, क्योंकि मेरी कन्विक्शन काफी ज्यादा थी इस मूव को लेके। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था साइडवेज होकर ये फॉल हो जाए, बट ठीक है। मैं ऑनेस्टली, ये हो सकता है बहुत प्रिडिक्टेबल लग रहा होगा, इसलिए हुआ है। रिलायंस वॉज होल्डिंग, देन आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस दिस होल रैली। दिस शॉर्ट कवरिंग में मैंने एक स्कैल्प मारा था, दिस वाज अ माइनर शॉर्ट कवरिंग, बट अगेन समवेयर अराउंड दिस लेवल आई वाज ऑन अ कॉल विद भावेश, आई क्लियरली सेड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू गो अप। 37,000 इस समय बैंक निफ्टी चल रहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ डिप एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू क्लोज समवेयर अराउंड हियर, ओके। बिकॉज मैंने ये सोचा कि बेरिश साइड के टारगेट्स आ सकते हैं, तो मे बी फॉल कल आ जाए, ये हो सकता है। बट जो हुआ है उसके बाद 2:30 के बाद, जब मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ये फॉल, एंड ऑनेस्टली ये इंटेंसिटी की फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मार्केट ये करता है बहुत बार, गैप अप देता है, डेटा में कॉल शॉर्ट्स होते हैं, साइडवेज हो गई, ये सीधा 17,000 आ जाता है। तो आई मेड अ डिसेंट अमाउंट, आई मेड अ गुड अमाउंट ऑन दिस, बट you need to understand that markets will teach you everything, मतलब मार्केट आपको हर एक चीज बताएगा। अब ये अगली बार होगा, आई कैच इट, ओके, दिस इज समथिंग न्यू आई हैव लर्नड। तो ये हो गया, ठीक है। देन अबाउट येस्टरडे, मार्केट्स वर टोटली साइडवेज, मार्केट में कुछ मोमेंटम था ही नहीं कहीं पे भी। और मैंने ये भी लिखा था ग्रुप पे कि साइडवेज मार्केट ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो आप बस एनालिसिस के लॉजिक समझो, मैं क्यों कह रहा हूँ। कल के मेरे मैसेजेस देख लेते हैं हम लोग, मैंने क्या मैसेजेस डाला, ठीक है। हाँ, मैंने लिखा था दिस कैंडल हैज अ स्टोरी, आई टेल यू आई एम टॉकिंग अबाउट व्हिच कैंडल। बैंक निफ्टी को बनाता हूँ। आई हैव ऑब्जर्व दिस मेनी टाइम्स, ओके।
वेरी नाइस कैंडल इन द मॉर्निंग. In the morning, नहीं, the second half, I think. Just a minute. हाँ, ये कैंडल थी. देखो ये जो कैंडल्स होती है ना, ये वाली, आप याद करना एक चीज मैंने कंसेप्ट बताया. अगर सपोर्ट है, उसके नीचे फेक आउट आ रहा है और फिर कैंडल रेंज के अंदर आ रही है, अब छोटे से टाइम फ्रेम पे जाके इमेजिन करो ये लेवल पे, नो डाउट इसका फेक आउट नहीं है, बट यहाँ पे बायर्स तो एक्टिवेट हुए ना. छोटे टाइम फ्रेम पे तो वही हुआ है, पहले रेड दिख रही थी और फिर इतनी बड़ी ग्रीन बन गई. तो ये कैंडल ना माइनर शॉर्ट कवरिंग्स को ट्रिगर करता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है. इस पर हम बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट वी गेट अ माइनर शॉर्ट कवरिंग. सो अगेन आई सेड कि यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग एन अपसाइड. वी गॉट एन अपसाइड. At this point, I clearly said consider booking your profits because 36,500 ऐसे नहीं टूटेगा. 36,500 was a good level, and somewhere around here I said consider booking your profits. Honestly, I was expecting कि ऊपर चला जाएगा, but इसने काफी नीचे से टिप दे दिया. So clearly here my view changed ये pull back पे, and then I asked you कि आप book कर लो profits. I was expecting this move yesterday itself, but वो नहीं आया. So I had a new learning कि I need a fake out to trigger a short covering, a big short covering, and उसके बिना आ रही है I won't be participating. ठीक है, मेरे को नहीं करना है participate. So क्योंकि देखो अल्टीमेटली इसने फेक आउट दे के ही शॉर्ट कवरिंग दिया. देख लो ये स्विंग तोड़ा हमने, क्लोजिंग दी गैप अप, शॉर्ट कवरिंग. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर बैंक निफ्टी. निफ्टी सिमिलर चार्ट है. ठीक है. अभी ये हो जाती है बात कि कल के लिए क्या व्यू बनाना है. देखो मार्केट ने आज बहुत बड़ा मूव दिया है. ठीक है. मैं ऑनेस्टली नहीं एक्सपेक्ट करता कि मार्केट हर दिन बहुत ज़्यादा मूव करे, क्योंकि विक्स देख लो यार कहाँ पे. मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ. सो अगेन स्कैल्पिंग करेंगे. व्यू मैं रात में एक बार शेयर कर दूंगा इस पे, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे वॉइस नोट दे दूंगा. लेकिन ऐसा कुछ खास व्यू नहीं है, कंटिन्यू बाइंग ही होगी मेरे ख्याल से. हो सकता है कल और चल जाए बैंक निफ्टी. ठीक है. 1,000 पॉइंट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हो सकता है चल जाए. सबको लग रहा होगा यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगा, बैंक निफ्टी हो कुछ भी कर सकता है. ठीक है. हमारी ये बात भी हुई थी 36,000 एक बार आ सकता है जब मार्केट यहाँ कहीं पे था, क्योंकि ये एरिया से बाइंग आनी ही थी. 36,000 वॉज अ बिग 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 सपोर्ट. ओके. एंड वो लोग ऐसी फॉल हमेशा स्टॉप हंट करने के लिए लाते हैं. इसमें आप नहीं फंसो तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें ट्रेड करना रिकमेंडेड नहीं होता. ठीक है. तो बैंक निफ्टी देखते हैं कल क्या करता है. मैं वॉइस नोट दे दूंगा. डाउ की क्लोजिंग भी मैटर करती है, डाउ कहाँ क्लोज करता है, उसके अकॉर्डिंग डेटा देख के, सेंटिमेंट्स देख के वी विल ट्रेड. एंड लेट्स सी कल क्या होता. एंड आज के दो मेजर लर्निंग पॉइंट्स मैंने, वो जो आपको एक कैंडल बताई शॉर्ट कवरिंग वाली, वो, और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न. देखो बुक में आप सब पढ़ते हो यार, डिसेंडिंग ट्रायंगल एप्लीकेशन करके कोई दिखाए वो इंपॉर्टेंट है. आप इसको बैक टेस्ट कर लेना. अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल या हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है, अगर वो बन रहा है और मार्केट आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगी, तो पहले नीचे एक फेक डाउन आएगा फिर मार्केट ऊपर जाएगी. ऐसे ऊपर नहीं जाती है मार्केट, क्योंकि पैटर्न्स वीकनेस शो कर रहे हैं. तो वो वीकनेस या तो शो कर रही है लोगों को ट्रैप करने के लिए, या तो जेन्युइन वीकनेस है. तो अगर ट्रैप कर रहा है तो उसको नीचे तो गिरना पड़ेगा. ऐसे कैसे कोई ट्रैप होगा. डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, मार्केट ऊपर चला गया, मैंने ऐसा बहुत रेयरली होते हुए देखा. सो दीज वर द लर्निंग्स फॉर टुडे. डेटा देख लेता आया है क्या, मैं देखता हूँ एक सेकंड. FII डेटा, आई थिंक ये है आज का डेटा. यार एक्सपायरी थी ना आज. हाँ ठीक है. इतना ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं है डेटा. इनके पास कॉल शॉट्स है और पुट शॉट्स भी है, क्लाइंट्स भी. मिक्स्ड डेटा है, पूरा मिक्स डेटा है. कल बिल्ड होने देंगे डेटा. डेटा कल बता देगा क्या करना है. ठीक है. तो मैं व्यू कल सुबह ही दूंगा टेलीग्राम पे. मार्केट हाइस पे है. मैं निफ्टी अगर और यहाँ से 100-200 पॉइंट बढ़ जाए, वोंट बी सरप्राइज. बट अगेन एज आई सेड, मार्केट बुल्स आर विनिंग. अब खुद समझना. मैंने कितनी बार कहा है कहीं भी शॉर्ट मत करो मार्केट को. यहाँ पे कितने लोग ने शॉर्ट किया होगा मार्केट को, जिस दिन पुट लेके गए होंगे सब लोग. कभी मत किया करो ये सब. ठीक है. प्राइमरी ट्रेंड के साथ रहना. आई एम होल्डिंग अ लॉट ऑफ फ्यूचर्स. मेरे पास रिलायंस का फ्यूचर्स पड़ा. आई हैव अदानी पोर्ट्स का फ्यूचर्स, DLF का फ्यूचर्स. मैं ये इस फॉल से डरा नहीं था, सब कुछ होल्ड किया. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे दिमाग में आया था कि 17,000 टूट रहा है, अगर इस दिन की क्लोजिंग हो जाती ना 17,000 के नीचे, मैं पार्शियली बुक कर लेता हूँ ऑनेस्टली. बट मैंने नहीं किया. देन कोल इंडिया मेरा एक पिक है. इसको मैं पर्सनली एंटर नहीं कर पाया क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हो गया था बुलिश साइड पे. बट कोल इंडिया मैंने बना के रखा था. So this was a good pullback. So I've traded Coal India, and apart from this, I've traded Coal India somewhere around here. I captured this move, but ये move छोड़ गया है.
कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलायंस पड़ा है मेरे पास, रिलायंस इज एट ऑल टाइम हाइज। रिलायंस की एनालिसिस देख लो, टेक्निकल टर्म्स में बता देता हूँ। फंडामेंटली दिव्यराज भैया का रीजन था पूरा का पूरा, लेकिन टेक्निकली मेरा था, टेक्निकली उनका भी था डेफिनेटली, बट मैं अपने जो टेक्निकल्स देखता हूँ वो बता देता हूँ। देखो, यहाँ आपको एक ब्रेक डाउन मिला था, ठीक है, और ये जो पॉइंट था यहाँ से, देखो टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आप अक्टूबर से कंसोलिडेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं पे मैंने लॉन्ग किया था रिलायंस को इस लेवल के अराउंड, और अभी वो रखा हुआ है मेरे पास पोर्टफोलियो के पास, पोर्टफोलियो में। तो इसका रीजन यही था, दिस वाज माय स्टॉप लॉस, ये इसका एक फेक डाउन आया और हम ऊपर चले गए। सो ये पॉइंट पे मेरी कन्विक्शन बढ़ गई थी। एंड अगर आप वीकली चार्ट भी देख लो, वीकली चार्ट पे भी हमने विकआउट किया था, यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी थी, हमने हंट किया था। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दीज हाइज टू बी टेकन ऑफ एंड दिस लो बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सो अब मार्केट कभी भी इसको मिटिगेट करेगा, सो विल बी गेटिंग अ गुड, वेरी 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 गुड अपसाइड। सो इवन इफ द मार्केट्स कम डाउन, आई विल बी लुकिंग टू एक्यूमुलेट रिलायंस, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, डीएलएफ आई एम स्टिल सेटिंग। डीएलएफ यहाँ तक जाके आया है, सॉरी यहाँ तक जाके आया है, यहाँ कहीं लॉन्ग किया है हमने डीएलएफ को। ये पूरा रैली हैव बेड इट, ये थोड़ा सा फॉल आई थी, प्रॉफिट आधे हो गए थे इसमें, आधे तो नहीं, 1/4 प्रॉफिट चला गया था, तो उसको झेलना पड़ता है फ्यूचर्स में। अगर मार्केट का बुलिश आपका व्यू जो है वो सही है, पोजिशनली बुलिश हूँ इसलिए सब हो पा रहा है। काफी लोग शॉर्ट बैठे हैं आज के दिन में मार्केट में, उनको लग रहा है 14,000 8,000 ये सब लेवल्स आएंगे, और वही लोग हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट करते हैं और फिर वही कवर करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, ठीक है। आई होप you learned something. Try back testing the setups I have given, and I'll come up with a learning or educational video this weekend. Okay, I'll be free this weekend. I'm not going anywhere, so I'll be covering a lot of things. Okay, so I'll see you on the other side. Thank you.